Describe a good law in favor of women. You should say what the law is, how it favors women, what do you think about it. Laws are made to ensure the smooth functioning of the society. Law ensures the protection of rights given to the people. Also, it ensures the protection of people from the abuses by the bad people. Law defines various duties and rights of its citizens. Today, I would like to talk about a specific law made for the protection of women from domestic violence. It is known as Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Violence include physical violence, mental harassment, sexual abuse, and economic exploitation. This law not only protects women from the violence by her husband, but women living in the same home with people with whom they are in a domestic relationship with. According to the law, the aggrieved person may move an application to the magistrate. The magistrate may appoint a protection officer. The magistrate may direct the aggrieved person to undergo counseling alone or along with the partner. It is the duty of the protection officer to provide all sort of assistance to the aggrieved person. Magistrate may grant monetary relief. Magistrate may grant custody of any child or children to the aggrieved person. The aggrieved person has the right to a shelter home in case the person doesn't want to stay at home. Medical services are bound to provide free medical aid. Any non-compliance invites legal action against the service providers. This law empowers the women to fight against domestic violence, especially when the cases of domestic violence are widely prevalent but remain largely invisible in public domain. I feel that such law was needed to protect women in a male dominated society. औरतों के हक में बने कानून के बारे में बताएं। आपको बताना है वो कानून कौन सा है, वो औरतों के हक में कैसे है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज अच्छे से चल सके। कानून ये यकीनी बनाता है कि लोगों को दिए हुए हक़ों की रक्षा हो सके। कानून ये भी यकीनी बनाता है कि उन लोगों की भी रक्षा हो सके जिन्हें बुरे लोग तंग करते हैं। कानून नागरिकों के हक़ों और कर्तव्यों के बारे में बताता है। आज मैं उस कानून के बारे में बात करनी चाहूँगा जो औरतों को घरेलू हिंसा से बचाता है। इस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हिंसा शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल या फिर वित्तीय हो सकती है। ये कानून न केवल औरतों को उनके पति द्वारा की गई हिंसा से बचाता है बल्कि अन्य घर में साथ रहने वाले लोगों से भी बचाता है जिनके साथ औरत रहती है। कानून के मुताबिक पीड़ित औरत मजिस्ट्रेट के पास लिखती शिकायत कर सकती है। मजिस्ट्रेट एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। मजिस्ट्रेट औरत को या उसके पति को काउंसलिंग के लिए भी भेज सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि वो औरत को कानूनी मदद यकीनी बनाए। मजिस्ट्रेट औरत को वित्तीय सहायता भी दिलवा सकता है। मजिस्ट्रेट बच्चे या बच्चों की कस्टडी औरत को दे सकता है। औरत को हक है कि वो किसी आसरा घर में रह सकती है अगर वो अपने घर में नहीं जाना चाहती। औरत को मुफ्त डॉक्टरी सहायता भी दी जाती है। इनमें से अगर कोई भी मजिस्ट्रेट के हुक्म को नहीं मानता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह कानून औरतों को सशक्त बनाता है घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए, जबकि घरेलू हिंसा के केस आम बात हो गई है, पर ज़्यादातर ये लोगों की नज़रों से ओझल रहती है। मुझे लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में ऐसे कानून की सख्त ज़रूरत है। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਫਰੋਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005। वायलेंस शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सैक्शुअल अब्यूज़ भी हो सकता है और या पैसे के पक्षों भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। ये कानून ना केवल औरत को उसके पति द्वारा की गई वायलेंस या हिंसा तो बचाता है, बल्कि हर उस व्यक्ति तो बचाता है जिस नाल औरत घर विच रहिंदी है। इस कानून के मुताबिक औरत मैजिस्ट्रेट को लिखती शिकायत कर सकती है। मैजिस्ट्रेट एक प्रोटैक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। मैजिस्ट्रेट औरत को इकल्ले या उसके पार्टनर के नाल काउंसलिंग ਲਈ भेज सकता है। प्रोटैक्शन ऑफिसर की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि वह पीड़ित औरत को हर तरह की कानूनी सहायता प्राप्त करावे। मैजिस्ट्रेट औरत को पैसे की सहायता भी दवा सकता है। मैजिस्ट्रेट औरत को उसके बच्चे या बच्चों की कस्टडी भी दवा सकता है। औरत को इस गल का हक, इस कानून के तहत औरत को हक है कि वह किसी आसरा घर दे विच रह सकती है अगर वह अपने घर विच रहना पसंद नहीं करती। मैडिकल सर्विसेज द्वारा औरत को फ्री विच मैडिकल सहायता देनी जरूरी है। इन्हां विचों अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर मैजिस्ट्रेट के हुक्मां नूं नहीं मानता तो उस ते लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये कानून औरत को सशक्त बनाउंदा है ताकि वह घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ सके उदों जदों कि घरेलू हिंसा हुण आम हो गई है, पर यह आम तौर पर लोगों की अखां तो ओझल ही रहिंदी है। मेरा मनना है कि पुरुष प्रधान समाज विच अजिहे कानून की बहुत लोड़ है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, do consider subscribing my channel so that I can make more videos like these. Thank you.